Now I am starting the staffing process. I have already explained you the staffing process steps from first to fourth in the previous video, and now I am telling you the next step. In the previous step I have explained you the step placement and orientation. In placement and orientation, the employee is get introduced to the superior and subordinates, and he is also get introduced to the enterprise policies and procedures and rules. Now the next step is training and development. After placement and orientation, employee get training for the work which he have to perform, so that he will get an idea of the level of the work which he has been given. It will also help in his career development. Now an enterprise can provide training by any method. There are many methods available for providing the training to the employees. Many enterprises have linked with the training institutions which are expert in providing training to the employees. The enterprises send their employees to that type of institution to provide training, or they may provide them mock trainings. There are different ways of training available for an enterprise. तो अभी हमने देखा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, प्रशिक्षण एवं विकास हमने देखा। प्रशिक्षण एवं विकास में क्या होता है कि एक बार जब एम्प्लॉई को, कर्मचारी को इंट्रोड्यूस करवा दिया गया सबके साथ, संस्था की नीतियों के साथ, संस्था के नियमों के साथ, उसके बाद उसे जो है प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि उसका जो है विकास हो सके। ये जो है उसके करियर डेवलपमेंट में भी मदद करता है। ट्रेनिंग देने के कई तरीके होते हैं। कोई भी एंटरप्राइज अपने एम्प्लॉयज़ को किसी भी तरीके से ट्रेनिंग दे सकती है। उसकी कई मेथड्स अवेलेबल है। जैसे कि मैंने आप एक एग्जांपल बताया कि कई जो एंटरप्राइजेस होती हैं उनकी जो ऑलरेडी लिंक होती है ऐसे इंस्टीट्यूशन से जो कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को ऐसे इंस्टीट्यूशंस भेज देती है जहाँ पे उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, या वो जो है एक तरह से जो है उनको काम दे देते हैं जिसकी वो प्रैक्टिस करके काम को सीखते हैं, या ऐसा नकली एनवायरनमेंट दे देते हैं, वर्चुअल एनवायरनमेंट ऐसा दे देते हैं जो कि उनके काम से उनके जो भी उनको काम आगे करना है उससे संबंधित होता है और उसी के जैसा होता है। तो ट्रेनिंग देने के कई तरीके हैं। एक संस्था अपने एम्प्लॉयज़ को जो ट्रेनिंग देती है, इससे एम्प्लॉयज़ को भी फ़ायदा होता है, उनका जो है मनोबल बढ़ता है, उनको मोटिवेशन मिलता है और उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी क्या होता है, बढ़ता है। तो ये हमारी नेक्स्ट स्टेप हमने देखी। अब एक और नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। आफ्टर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज़, दे हैव गिवन work or job for some time and their performances get evaluated. Their performance is get evaluated on the basis of some specific standards. They are predetermined standard on the basis of which their performance get evaluated. They are supposed to perform up to the standard at least after the training. प्रशिक्षण देने के बाद उन्हें कुछ काम थोड़े समय के लिए दे दिया जाता है और फिर देखा जाता है कि उनका प्रदर्शन कैसा चल रहा है, वो कैसा प्रदर्शित कर रहे हैं, काम किस तरीके से कर रहे हैं। उनका जो मूल्यांकन होता है या उनका जो प्रदर्शन होता है उसका मूल्यांकन जो है कुछ मानकों के आधार पे किया जाता है। इट विल हेल्प द एंटरप्राइज टू डिटरमाइन वेदर द एम्प्लॉय नीड मोर ट्रेनिंग और नॉट. So the training period can be extended if the performance of the employee is not up to the standards. It is necessary for the organization to address the career related issue because there are many employees who are doing the job because they are more career conscious and want more personal development. So it's necessary for the organization to ensure that employees get proper career guidance and promotion if they are doing their work or performing their work with full devotion, honesty and efficiency. तो सभी कर्मचारी चाहते हैं कि उनका विकास हो। अगर वो उनका कार्य जो है अच्छा कर रहे हैं, वो अपना प्रदर्शन अच्छा दिखा रहे हैं और कुशलता से कार्य कर रहे हैं, तो वो ज़रूर चाहेंगे कि उनका क्या हो, पदोन्नति हो, उनका प्रमोशन हो। इसलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, संगठन के लिए और कोई भी व्यावसायिक इकाई के लिए ये आवश्यक है कि वो जो है अपने
अपने कर्मचारियों के करियर का ध्यान रखे और उनको जो है पदोन्नति दे अगर उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा हो या वो बड़ी ऑनेस्टी और कुशलता से काम कर रहे हों। नेक्स्ट स्टेप इज़ द कंपनसेशन पारिश्रमिक। कंपनसेशन मे बी इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, वेजेस, बोनस, इंसेंटिव्स, कमीशन और एनी इनडायरेक्ट पेमेंट और फैसिलिटीज़ लाइक फैसिलिटी of traveling expenses, facilities like giving vacation or tour to the employees, paying insurance premium for the employee, and many other facility can be provided to the employee by the enterprises. So the compensation may be in any form which will provide satisfaction to the employees. पारिश्रमिक जो होता है वो किसी भी तरीके से दिया जा सकता है, ठीक है, जैसे कि वेतन हो सकता है, कमीशन हो सकती है, बोनस हो सकता है या किसी तरह की फैसिलिटी हो सकती है, जैसे कि वाहन सुविधा हो सकती है, मेडिकल सुविधाएं हो सकती है, ठीक है, चिकित्सक सुविधाएं हो सकती है, इंश्योरेंस जो है एम्प्लॉय के लिए जो है उनकी ऑर्गेनाइजेशन संगठन पे कर सकता है। हो सकता है कि जो है एम्प्लॉय को वेकेशन या टूर जो है ऑर्गेनाइज़ करके दे एंटरप्राइज। तो किसी भी प्रकार की जो सुविधाएं जो है बिजनेस दे सकता है पारिश्रमिक के रूप में। पारिश्रमिक के रूप में सिर्फ जो है वेतन नहीं आता है बल्कि अन्य सुविधाएं भी आ जाती है या प्रलोभन भी आ जाते हैं जो कि एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए दिए जाते हैं। तो ये जो पारिश्रमिक होता है ये क्यों दिया जाता है, क्योंकि जब एम्प्लॉय कुशलता से कार्य करता है और अपना समय संस्था को देता है तो उसके बदले में उसे पारिश्रमिक दिया जाता है।